children, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to read a chapter which name is Rocks and Minerals. So what we are going to read in this chapter about the rocks, types of rocks, minerals and conservation of natural resources. So बच्चे the chapter is rocks and minerals. So rocks क्या होती हैं? Rocks जैसे कि the rock are made up of minerals और outer layer जो होती है हमारी अर्थ की वो किसकी बनी है? Rocks की बनी है. Fine. So what are rocks? Our earth has three layers: crust, mantle and core. Upper layer is the crust, that is the outer layer which is made up of rocks. The rocks are made up of minerals. A rock may be made up of one or more minerals. Different types of rocks are made up of different minerals in different ways. So what are the rocks? जो आपका outer layer है अर्थ की, crust जो है वो किसकी बनी है? rocks की बनी है और rocks जो है वो minerals की बनी होती है. ठीक है. Now types of rocks. There are three types of rocks: igneous, sedimentary and metamorphic rocks. First we will read about igneous rocks. Okay, so see, this is the rock in the earth crust. Fine. igneous rock, igneous नाम से ही आपको पता लग रहा है फायर, यानी कि मोल्टन रॉक होती है ये, जो किससे निकलती है? लावा से. igneous rocks form when molten rock called magma cools. When magma comes to the surface, it is called lava. When lava cools, the rocks are called extrusive igneous rocks. Igneous rocks also form when the melted rock is still inside the crust. When this happens below the ground, the rocks are called intrusive igneous rocks. igneous rocks कौन सी होती हैं? आपको पता है जो अर्थ का टेम्परेचर है, ठीक है, जब आप कोर, मेंटल, क्रस्ट, मेंटल, कोर, कोर इज द इनसाइड पार्ट, कोर में जो टेम्परेचर है वो बहुत ही हाई होता है, प्रेशर भी बहुत हाई होता है, तो वहाँ पर आपका जो आग लगी होती है, ठीक है, लावा जो है वो इस तरीके से बॉयल होता रहता है, जहाँ भी उसको क्रैक मिलता है मैग्मा को, वो वहाँ से बाहर निकल जाता है. तो बाहर निकल जब जाता है उसको लावा कहते हैं. तो कई बार क्या होता है, वो बाहर निकल के कूल डाउन हो जाता है और एक रॉक की फॉर्म ले लेता है, तो उसको कहते हैं एक्सट्रूसिव रॉक. और कई बार वो अंदर ही अर्थ सरफेस में ही, यानी क्रस्ट से बिल्कुल बाहर नहीं आता, क्रस्ट से नीचे ही वो कूल डाउन हो जाता है, तो उससे आपकी कौन सी रॉक बनती है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. फॉर एग्जाम्पल, based on the magma they are formed from, they can also look different based on their cooling conditions, जैसे granite, pumice, basalt and obsidian. These are the example of igneous rocks. तो ये क्या है? Examples. Now first we will discuss about granite. Granite जो कि मोस्ट कॉमन रॉक है. ग्रेनाइट से आपके फ्लोर बनते हैं, देखा होगा आपने ग्रेनाइट के. इट इज़ composed of the mineral feldspar, quartz and mica. The feldspar is often used as a decorative stone. Quartz is a hard and durable mineral that gives granite its characteristic toughness and it is used for making building and statues. ग्रेनाइट जो है ये बहुत ही हार्ड और टफ रॉक होती है जो स्टैचू और बिल्डिंग बनाने के काम आती है. ओके, नेक्स्ट इज pumice. इट इज़ अ वेरी लाइट रॉक. ठीक है. दूसरा, पोरस होती है बिकॉज इट इज़ फिल्ड विद टाइनी बबल्स ऑफ गैस. फॉर दिस रीजन इट इज़ ईजिली फ्लोट्स ऑन वाटर. वाटर पर ये फ्लोट कर पाती है बिकॉज इट इज़ वेरी लाइट वेट. इट इज़ यूज फॉर पॉलिशिंग फ्लोर्स एंड टिथ एंड इट इज़ ऑल्सो यूज एज स्क्रबर टू रिमूव रफ स्किन फ्रॉम द बॉडी. जो आप बाथरूम में, आपके वॉशरूम में आप स्क्रबर यूज़ करते हो ना अपनी स्किन से डेड स्किन रिमूव करने के लिए, दैट इज़ द pumice. ओके. Next है basalt. Basalt is formed by the cooling of a molten lava. The lava cools and then hardens into a fine grained crystalline rock and it is known for its dark color. कैसा कलर होता है? ब्लैक टू डार्क ग्रे कलर होता है और इसमें आयरन और मैग्नीशियम जो है वो बेसाल्ट में बहुत ज़्यादा होता है, सिलिका कम होता है और मोस्टली ये बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है. नेक्स्ट है बच्चे obsidian. that is formed by the rapid cooling of lava from volcanoes. जब बहुत जल्दी वोल्केनो का जो लावा होता है बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाता है तब आपकी ये रॉक बनती है. इससे क्या बनते हैं आपके? ये कटिंग टूल्स और वेपन्स के रूप में यूज़ की जाती है और जैम और ऑर्नामेंटल स्टोन जो होते हैं वो इसके ग्रे ब्लैक या फिर डार्क ब्लैक कलर की होती है, तो इससे बनाए जाते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ रॉक है सेडिमेंट्री रॉक. दिस इज द सेडिमेंट्री रॉक. ये एक लेयर की फॉर्म में होती है.
So sedimentary rocks are formed on or near the surface from pebbles, sand, mud and clay. These eroded particles of rocks are transported by wind and water and deposited on dry land on the beds of rivers, lakes and ocean. जैसे कि आपको पता है रिवर अपने साथ तो सेडिमेंट बहाकर लेकर आती हैं, फिर वो वहाँ पर डिपॉजिट कर देती हैं. ऐसे ही बहुत सालों में लेयर अपॉन लेयर जो है वो कीप डिपॉजिटिंग होती जाती है और टुगेदर कौन सी रॉक बन जाती है? सेडिमेंट्री रॉक. फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट एंड शेल. सो फर्स्ट एग्जाम्पल है सैंडस्टोन. सैंडस्टोन जो आपका रेड फोर्ट है, ठीक है, वो किसका बना है? रेड फोर्ट इन दिल्ली एंड रेड फोर्ट इन आगरा, वो सैंडस्टोन का ही बना है. सैंडस्टोन जो है ये रेड कलर का होता है और मोस्टली बिल्डिंग बनाने के काम आता है. सैंडस्टोन इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर. इट इज यूज्ड इन पेविंग एंड फ्लोरिंग एंड मॉन्यूमेंट स्कल्पचर ऑल्सो. ओके. सेकेंड है लाइमस्टोन. दिस इज द लाइमस्टोन जो आपका ग्लास मेकिंग और ब्रिक्स बनाने के काम आता है एंड इट इज़ composed ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द फॉर्म ऑफ कैल्साइट. इट इज़ formed फ्रॉम एन accumulation ऑफ एनिमल शैम्स, कोरल एंड अदर डेब्रिज ऑफ मेराइन ऑर्गेनिजम्स. यानी कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, समुद्री जीव होते हैं, उनके शेल से, कोरल से और अदर डेब्रिज से मिलकर ये लाइमस्टोन बनता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल चौक इज अ लाइमस्टोन. इट इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ quicklime, that is calcium oxide, slaked lime. It is used for making glass and bricks. Next is shale, that is composed of silt and clay. तो इस टाइप की शेल होती है जिससे क्या बनाई जाती है? पोट्री बनाई जाती है. कैसा कलर होता है? ब्लैक और ग्रे कलर होता है और आपकी ब्रिक, टाइल, पोट्री बनाने के काम आती है. उसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल के रूप में भी यूज़ की जाती है. नेक्स्ट है conglomerate, and that is a type of rock formed in the rounded pebbles and gravel cemented together by minerals and sand carried by water. कैसे बनती है ये? राउंडेड पेबल्स, छोटे छोटे गोल गोल पत्थर जो होते हैं, ग्रेवल सीमेंटेड जो है वो मिलकर जुड़कर, ठीक है, मिनरल और सैंड से वो एक साथ क्या बना देती है? कॉन्ग्लोमेरेट रॉक. It takes a strong water current to transport and produce a rounded shape on particles. Wind transport is unlikely to produce a conglomerate. It is used an ornament rock. ज्वेलरी बनाने के ये रॉक जो है ये काम आती है. सो बच्चे नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक. बेसिकली आपको क्या याद करना है कि इससे क्या बनता है रॉक से, ठीक है. जो एग्जांपल्स हैं जो आप पढ़ रहे हो कि कैसा कलर होता है, कहाँ पाई जाती है और इससे क्या बनता है, किस लिए यूज़ की जाती है. फाइन. मेटामॉर्फिक रॉक. मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब है मेटामॉर्फिज्म, मतलब चेंजेस फ्रॉम वन थिंग टू अनदर. ओके. अब जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक है और इग्नियस रॉक है, इनको अलग अलग कंडीशंस में जब ट्रीट किया जाता है तो वो क्या बन जाती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं. For example, these conditions are most often found deep in the earth crust. In order to form metamorphic rock, it is important that the existing rock remain solid and not melt. ठीक है, जो existing rock है वो solid होनी चाहिए. If there is too much heat or pressure, the rock will melt and become magma. और उसके बाद this will result in formation of an igneous rock, not a metamorphic rock. So there are many type of metamorphic rock such as, क्योंकि अगर वो melt हो जाएगी तो वो फिर से क्या बन जाएगी? इग्नियस रॉक बन जाएगी. तो हमें वो मेल्ट नहीं होने देनी है, ठीक है. कंडीशंस ऐसी रखनी है जिसमें आप हीट और प्रेशर ज़्यादा रखोगे. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक. फॉर एग्जांपल स्लेट, ग्नीस, मार्बल एंड क्वार्टजाइट. फर्स्ट है स्लेट. स्लेट जो है दैट इज़ अ फाइन ग्रेन मेटामॉर्फिक रॉक क्रिएटेड बाय द चेंज ऑफ शेल. शेल जो है उसको चेंज करके आपकी स्लेट बनती है. दैट इज़ यूज्ड इन फ्लोरिंग एंड फ्लैगिंग ड्यू टू इट्स हार्डनेस एंड अपीलिंग लुक. और उसके अलावा स्लेट और ब्लैक बोर्ड भी बनाए जाते हैं. ग्रे स्लेट जो है वो काफ़ी कॉमन है, बट द रॉक अकर्स इन अ वैरायटी ऑफ कलर इंक्लूडिंग ब्राउन, पर्पल, ग्रीन एंड ब्लू. नेक्स्ट रॉक है जीनियस रॉक. दैट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द चेंज ऑफ ग्रेनाइट. ग्रेनाइट को चेंज करके ये रॉक बनती है. इट इज़ वेरी हार्ड एंड hard rock that occurs in alternating lighter and darker parallel discontinuation band and it is used in decoration of building. ठीक है, इसमें क्या होते हैं? आपको अलग अलग कलर के बैंड बने होते हैं इसमें पैरेलल. तो ये किस लिए यूज़ होता है? बिल्डिंग को डेकोरेट करने में. मार्बल.
मार्बल जो है वो काफ़ी ग्रैनुलर मेटामॉर्फिक रॉक है जो बनती है लाइमस्टोन से। वाइट और पिंक कलर का मार्बल होता है, और भी मार्बल के काफ़ी कलर होते हैं। आप फ्लोर बनाते हो, वॉल बनाते हो, मार्बल के डेकोरेटिव एलिमेंट्स, स्टैचूज बनाते हो, राइट। जैसे ताजमहल जो है इंडिया में, वो किसका बना हुआ है? वाइट मार्बल का। उसके बाद नेक्स्ट है क्वार्टजाइट, that is also a metamorphic rock made from quartz sandstone, a sedimentary rock। एक sedimentary rock से ये बनता है। Pure quartzite is white, but quartzite exists in a wide variety of colors. It is used for making bricks and other strong building material। क्या बनाने के काम आता है? bricks और बाकी building material बनाने के काम आती है ये rock। सो हेयर इज द क्विक कनेक्ट, जिसमें आपको क्या बताना है, कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं। लाइक फर्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन लावा एंड मैग्मा। लावा और मैग्मा में क्या डिफरेंस है? लावा जब वो कूल डाउन हो जाता है बाहर निकल के, मैग्मा जो मोल्टन स्टेट में होता है दैट इज मैग्मा। ओके, तो जो आप पढ़ चुके हो। लाइक सेकंड इज हेल्प योर फ्रेंड टू नेम अ प्लेस इन इंडिया वेयर मार्बल इज फाउंड, जहाँ पर मार्बल मिलता है। तो सारे क्वेश्चन जो अभी तक आपने पढ़े हैं उसी से रिलेटेड हैं, तो ये आप खुद डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स जो हैं बच्चे वो नेचुरल केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि रॉक्स आपके मिनरल्स के बने होते हैं। मिनरल्स आर यूजली डिपॉजिटेड अंडर द ग्राउंड। सम मिनरल्स आर मेटेलिक एंड अदर्स आर नॉन मेटेलिक। फर्स्ट हम बात करते हैं मेटेलिक मिनरल्स की। मेटेलिक मिनरल जिसमें से हमें मेटल मिलते हैं, दैट इज द फॉर्म ऑफ द मेटल इन अ डेफिनेट कंपोजिशन आर नोन एज मेटेलिक मिनरल। जैसे iron, aluminium, gold, silver, copper and zinc. These substances are metal. They are found in rocks as ores और metallic mineral। ठीक है, अब जैसे आयरन है, आयरन की चेयर बनती है, तो आपको क्या चेयर अर्थ से ऐसे की ऐसे मिल जाती है? नो। क्या आपको ऐसे ही आयरन की रोड मिल जाती है? नो। आपको क्या मिलती है? उसकी इम्प्योर फॉर्म मिलती है, जिसको हम कहते हैं ओर्स। ओके, फिर उनको रिफाइनरी लेके जाया जाता है और वहाँ से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर्स। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। जैसे एल्यूमिनियम किससे बनता है? बॉक्साइट से। बॉक्साइट जो है, तो एल्यूमिनियम देखो, आप सोच भी सकते हो, आपके एल्यूमिनियम के बर्तन है ना आपके घर में, तो वो इस रॉक से बनते हैं, बॉक्साइट मिनरल से बनते हैं। सो बॉक्साइट क्या है? ओर ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम विच एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड। हेमेटाइट दैट इज एन ओर ऑफ आयरन, इससे आयरन बनता है, एंड फ्रॉम विच आयरन इज एक्सट्रैक्टेड। सिमिलरली पायरेट इज एन ओर ऑफ कॉपर एंड कैलेमाइन। ओके, नाउ gold, silver and platinum are precious metals. They are used for making jewelry, and aluminum is used in automotive and packaging sectors. Iron is used for making tools and machines and furniture. Copper is used for making wire and utensils. So these are the uses of metals. मेटल क्या होते हैं? जो आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, डक्टाइल होते हैं, जिनकी जो फॉर्म है, शेप है, वो आप अलग अलग कंडीशंस में चेंज कर सकते हो। जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम जो है उससे ज्वेलरी बनती है। एल्यूमिनियम से घर के बर्तन बनाए जाते हैं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। आयरन से बहुत सारे टूल और मशीन्स बनते हैं, राइट। कॉपर इज़ यूज फॉर मेकिंग वायर एंड यूटेंसिल्स। सो अब हम पढ़ते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स that do not include metals, जिसमें metals नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल पोटैश, डायमंड, टैल्क, मीका, क्वार्ट्ज आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल। मीका इज अ नॉन मेटल विच इज यूटिलाइज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। ठीक है, और लाइमस्टोन जो है दैट इज ब्रॉडली यूटिलाइज्ड इन सीमेंट बिजनेस। क्वार्ट्ज जो है वो वॉचेस में यूज़ किया जाता है। ग्रेफाइट जो आप पेंसिल के आपके लीड होती है। जेमस्टोन जो है जैसे डायमंड, रूबी एंड एमलेन दैट आर यूज्ड इन ज्वेलरी। नॉन मेटेलिक जो है दैट इज़ यूज्ड इन वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री टू मेक अ वैरायटी ऑफ गुड्स। बहुत सारी इंडस्ट्री में नॉन मेटेलिक जो हैं रिसोर्सेज, मिनरल्स, वो यूज़ किए जाते हैं काफ़ी चीज़ें बनाने के लिए। कोल और पेट्रोलियम जो है दैट इज ऑल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल विच आर यूज्ड एज फ्यूल्स टू ऑब्टेन एनर्जी। दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स। फाइन, अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इन इंडिया कोल माइंस आर फाउंड इन झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, जहाँ पर कोल यानी कि कोयले की खान है। अब कोयला क्या होता है? दिस इज द कोल। कोल क्या है? नॉन मेटेलिक मिनरल। ओके, so coal was formed millions of years ago from the remains of plants that got buried in the earth. ऐसा माना जाता है कि
बहुत टाइम पहले जो फॉरेस्ट थे, ठीक है, वो नीचे दबते चले गए, दे गॉट बरीड इन द अर्थ, और बिलियंस ऑफ ईयर के बाद जो है वो किस में चेंज हो गए, कोल में चेंज हो गए विद हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर. एज कोल वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, इट इज कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल. कोल जो है वो किससे बनता है, रिमेन्स ऑफ प्लांट से, इसीलिए इसको फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं. कैसा कलर होता है, ब्राउन ब्लैक होता है. ओके, कोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग, हीटिंग वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग होम्स. कोल इज ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एज फ्यूल टू प्रोड्यूस हीट. ओके, तो अलग अलग तरीके से कोल का यूज किया जाता है. नेक्स्ट है बच्चे पेट्रोलियम. जैसे आपके लैंड फॉर्म में जो फॉरेस्ट है वो अर्थ के नीचे दबते चले गए, ऐसे ही माना जाता है पेट्रोलियम जो है वो मिलियन ऑफ ईयर अगो पहले जो शैलो सीज थे वो उसके जो सी एनिमल थे, एक्वेटिक एनिमल थे, उसके साथ जो है वो दबते चले गए अंडर अर्थ. सो वो किस में कन्वर्ट हो गए, क्रूड ऑयल में, जिसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं. अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर द क्रूड ऑयल इज कॉल्ड पेट्रोलियम ऑल्सो. फाइन, एज पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ सी एनिमल्स, इसीलिए इनको भी क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल, यानी प्लांट और एनिमल के से जो बनते हैं वो आपके फॉसिल फ्यूल होते हैं. इट इज़ ए सोर्स ऑफ एनर्जी. पेट्रोल और डीजल जो है पेट्रोलियम से ही निकाले जाते हैं जो व्हीकल में यूज़ किए जाते हैं. और पेट्रोलियम के लिए ड्रिलिंग की जाती है, उसके बाद पेट्रोलियम रिफाइनरी होती है जहां पर उसको पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स में चेंज किया जाता है. पैराफिन वैक्स क्या होती है बच्चे, जो कैंडल बनाने में काम आती है. आपकी जो वैसलीन है उसमें पैराफिन वैक्स होती है, वाटरप्रूफ कार्टन्स और पॉलिश जो बनाते हैं उसमें पैराफिन वैक्स होती है. पेट्रोलियम जो है उसको ड्राई क्लीनिंग में भी यूज किया जाता है. So in India, petroleum is obtained from places in Gujarat, Assam and Mumbai coast. यहाँ इंडिया में पेट्रोलियम जो है वो ऑब्टेन किया जाता है. अब नेक्स्ट है बच्चे नेचुरल गैस. नेचुरल गैस जो है ये भी एक फॉसिल फ्यूल है दैट फाउंड अंडरग्राउंड. इट इज ऑब्टेन्ड बाय पंपिंग एंड ब्रोड थ्रू पाइपलाइन टू स्टोरेज एरियाज. इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन होम्स, ठीक है, जो कुकिंग के लिए आप यूज़ करते हो या हीटिंग पर्पस के लिए. उसके अलावा एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी होती है जो व्हीकल्स को चलाने में एज अ फ्यूल काम आती है और ये इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करती. नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो आपने देखा ये रिसोर्सेज, ये मिनरल हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं. इनके बिना हम अपनी लाइफ तो सोच ही नहीं सकते. तो क्या इनको कंजर्व करना जरूरी है? यस, दे कैन नॉट बी रिन्यूड एज दे टेक मिलियन ऑफ ईयर टू बी फॉर्म्ड. और बच्चे फॉसिल फ्यूल्स जो हैं ये काफ़ी लिमिटेड हैं. अगर हम इनको ऐसे ही यूज़ करते रहेंगे, वेस्ट करते रहेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि रिन्यू होने में बहुत ही मिलियन ऑफ ईयर लग जाते हैं. तो हमें सोच समझ के यूज़ करना चाहिए. नेचुरल रिसोर्सेज, फॉसिल फ्यूल्स की जगह हमें वाटर, एयर एंड सनलाइट जो है उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होंगे. सो दे आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज. We must use renewable energy resources, air, water and sunlight. So this is the chapter. Now wrap up the chapter fast. Minerals are naturally occurring substances in the earth crust. Rocks are made up of minerals. Rocks are classified into 3 groups: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. Igneous rocks are made when molten rocks called magma solidifies. Sedimentary rocks are formed from sediments. Metamorphic rocks are formed by the change of igneous and sedimentary rocks. Minerals are divided into 2 groups as metallic and non-metallic minerals. Coal and petroleum are fossil fuels which are formed from organisms that got buried millions of years ago. And we should conserve fossil fuels as they are in limited quantity. So this is the chapter bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.